آج کے اس جلسہ عام میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں وہ ہر شخص کی ذات سے، ذاتی اعمال سے، زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو ہمیں پیدا فرمایا اور اللہ نے ہمیں دل ایسا ایک عظیم عضو عطا فرمایا ہے جس کا اثر سارے اعضاء پر ہوا کرتا ہے۔ انسان کے سینے میں جو دل موجود ہے اسے سید البدن کہا جاتا ہے، یعنی پورے بدن کا سردار۔ امیر البدن کہا جاتا ہے، یعنی تمام بدن کا امیر، سردار۔ اسی دل کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن کریم کی روشنی میں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمودات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ قبل ازیں کہ میں اپنی باتیں شروع کروں، تمہیداً ایک بات عرض کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر بندہ گنہگار ہے۔ بعض گناہوں کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے اور بہت سارے گناہوں کا تعلق ہمارے دل سے ہوتا ہے۔ اگر کسی شخص سے کہا جائے کہ کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ تمام باتیں لوگ جان جائیں، آپ کے دل کی تمام باتیں نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دی جائیں؟ اگر کسی سے کہا جائے تو کوئی بندہ اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے دل کی تمام باتیں نکال کے باہر رکھ دی جائیں اور لوگ دیکھ لیں، لوگ جان لیں کہ دل میں کیا ہے، دل کے خیالات کیا ہیں، دل کے وساوس کیا ہیں۔ کوئی نہیں چاہے گا جانے۔ یہ دنیا ہے، دل کی تمام باتیں چھپی ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک دن ایسا بھی بنایا ہے جس دن دل کی کوئی بھی بات انسان کی چھپی ڈھکی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے سورہ طارق میں، اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، اللہ مردہ کرنے کے بعد، مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اور وہ دن وہ ہوگا جب دوبارہ زندہ کرے گا۔ یوم تبلی السرائر، اللہ نے کہا انسان کے جسم کے، انسان کے دل کے پوشیدہ اعمال اور انسان اپنے دل میں کیا کچھ چھپائے رکھتا ہے، یہ تمام باتیں، تمام چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، اللہ نے آگے بیان فرمایا جب تمام باتیں دل کی ظاہر ہو جائیں گی اور دل میں کوئی بات چھپی اور پوشیدہ نہیں ہوگی، ہر بات ظاہر، ہر چیز ظاہر، جو ظاہری اعمال تھے وہ تو ظاہر رہیں گے ہی، جو اب تک ساری زندگی چھپے تھے اللہ رب العالمین ان سب کو بھی ظاہر کر دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، جب ایسا ہوگا دل کی تمام باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ فرماتا ہے اس دن کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ انسان اپنی طاقت لگا کے چاہے کہ میں اپنا راز جیسے دنیا میں چھپاتا چھپا لوں، نہیں چھپا سکتا۔ کوئی طاقت انسان کے پاس نہیں ہوگی کہ وہ اپنے دل کی باتیں چھپا لے اور دل میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر ہونے سے روک لے۔ تمام تر قوتیں اور طاقتیں انسان کے پاس جو ہیں سب بیکار اور بے معنی۔ وہ دن اعمال کے ظاہر ہونے کا دن ہے اور اعمال ظاہر ہو جائیں گے۔ زبردستی چھپانا اور دبانا اور بچا کے رکھنا، چھپا کے رکھنا کہ جیسے دنیا میں تمام اعمال چھپے تھے یہاں چھپے رہیں، نہیں چھپے رہیں گے۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ، اللہ کہتا ہے کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی قوت نہیں ہوگی۔ اور
आदमी के पास तो कोई कुव्वत नहीं होगी, कोई ताकत नहीं होगी, तो क्या किसी दूसरे से कह के अपने दिल की बातें छिपवा सकता है? क्या किसी दूसरे से कह के अपने अमाल को पोशीदा रखवा सकता है? नहीं। अल्लाह ने कहा फमा लहु मिन कुव्वतिन वला नासिर, और कोई मददगार भी नहीं होगा, कोई मदद करने वाला नहीं होगा, न इंसान के अपने लोगों में न दूसरे लोगों में, दुहाइयां देता रह जाएगा, कोई उसका मददगार नहीं होगा। यह उस दिन कयामत के दिन का ज़ाब्ता है। इंसान अपने अमाल के साथ उठाया जाएगा, अपने ज़ाहिरी अमाल के साथ अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। या तो वो इज्जत व तकरीम पाके मुअज़्ज़ज़ हो जाएगा, या उसके अमाल ज़ाहिर होने के बाद ज़लील हो जाएगा। और यह चीज़ ऐसी है जो बिलजबर इंसान के सीने से निकाल ली जाएगी। अल्लाह फरमाता है वहुस्सिला मा फी सुदूर। इंसान दिल में क्या छिपाता है, दिल में क्या बुराइयां हैं और दिल में क्या गुनाह हैं, दिल में कौन से वसवसे हैं, अल्लाह फरमाता है वहुस्सिला मा फी सुदूर, कि क़यामत के दिन दिल की तमाम बातें हासिल कर ली जाएंगी, ले ली जाएंगी। यह क़यामत के दिन का मंजर होगा। आज जब किसी से इस्लाह की बात की जाए, फौरी तौर पर ज़हन जाता है ज़ाहिरी इस्लाह की तरफ, अपने ज़ाहिरी अमाल के इस्लाह की तरफ, आज़ा जो ज़ाहिरी हैं उनके इस्लाह की तरफ ध्यान जाता। हकीकत में दिल ऐसा उज़्व है अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ कि अगर उसकी इस्लाह कर दी जाए, अगर दिल सही हो जाए, तो हकीकत में समझें कि हम पूरे तौर पर बहुत हद तक बहुत परहेजगार बन जाएंगे। दिल की इस्लाह का मामला बड़ा संगीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया वज़रू ज़ाहिरल इस्म व बातिनहु, ऐ लोगो, ऐ दुनिया के लोगो, तुम्हें गुनाह छोड़ने का हुक्म दिया जा रहा है, तुम्हें गुनाह से दूर रहने का हुक्म दिया जा रहा। तो सुनो, तुम्हें कैसे गुनाह से दूर रहना है, तुम्हें गुनाह से किस तरीके से दूर रहना। अल्लाह ने फरमाया वज़रू, ऐ लोगो तुम छोड़ दो, क्या छोड़ दो? ज़ाहिरल इस्म, जो गुनाह तुम ज़ाहिरी करते हो, जो ज़ाहिरी आज़ा से तुम गुनाह करते हो, उन तमाम गुनाहों को तुम छोड़ दो। व बातिनहु, और जो गुनाह तुम बातनी तौर पर करते हो, जो गुनाह तुम छिप के करते हो, जो गुनाह तुम पोशीदा तौर पे करते हो, उन गुनाहों को भी छोड़ दो। ये अल्लाह का हुक्म है। सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर ऊपर ऊपर गुनाह छोड़ देने से क़यामत के दिन इज्जत नहीं मिलने वाली है। क़यामत के दिन इज्जत नहीं मिलेगी अगर हम सिर्फ अपने ज़ाहिर को अच्छा बना लें, अपने आप को हम बाहर से अगर अच्छा बना लें, तो सिर्फ इतने से क़यामत के दिन इज्जत नहीं मिलने वाली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वलक़द खलक़नल इंसान, ऐ दुनिया के लोगों जानो कि हमने इंसान को पैदा किया, वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु, हम जानते हैं, अल्लाह फरमाता है कि हम जानते हैं कि इंसान के दिल में क्या छिपा है, हम जानते हैं कि इंसान के दिल में क्या ख्याल आता है, हम जानते हैं कि इंसान क्या सोचता है, हम जानते हैं कि इंसान के दिल में क्या वसवसा आता है। वलक़द खलक़नल इंसान वनअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह फरमाता है कि हम शहरक से भी ज़्यादा करीब। ये अल्लाह की ज़ात वो है जो हमें ज़ाहिर से भी अल्लाह जानता है, अल्लाह हमें अंदर से भी जानता है। अगर हम हिसाब व किताब के लिए क़यामत के दिन कब्रों से निकाले जाएंगे, अगर हमने दुनिया में सिर्फ अपने ज़ाहिर को अच्छा बनाया होगा, अगर हमने ऊपर ऊपर से अपने आप को अच्छा बनाया होगा, अगर हमने अपने दिल पर तवज्जो न दी होगी, तो क़यामत के दिन हमारे लिए ज़िल्लत है, रुसवाई है। क्यों? इसलिए कि क़यामत के दिन हमारे सिर्फ ज़ाहिरी अमाल का हिसाब नहीं होगा, हमारे सिर्फ उन अमाल का हिसाब नहीं होगा जो ज़ाहिर हैं, जो छिपे हैं, जो आपके अलावा कोई नहीं जानता, उन अमाल का भी हिसाब होना है। और ज़रा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को देखें। अगर आदमी अपने दिल के कानों से
अल्लाह के नबी की हदीसें सुने तो रोंगटे खड़े हो जाएं। वो लोग जो अपने सिर्फ जाहिर को अच्छा बनाते हैं, अपने सिर्फ बाहर को अच्छा बनाते, बाहर से अपने आप को अच्छा बनाते। ज़रा नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की वो हदीस पाक सुने जिसे इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सुनन इब्न माजा में किताबुज़ ज़ुहद में रिवायत किया। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। फरमाते हैं जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती। ज़रा सुने ध्यान से, ये हदीस हमें झंझोर देने के लिए काफ़ी है। उन लोगों को ख़ास तौर पर जो सिर्फ अपने ज़ाहिर को अच्छा बनाने की फ़िक्र में होते हैं। ज़रा सुने कि हमारे लिए अपने दिल पर तवज्जो देना कितना ज़रूरी है, अपने दिल की इस्लाह करना कितना ज़रूरी है। हज़रत सौबान बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला अलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं अपनी उम्मत के बहुत से लोगों को जानता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। और कहाँ के? बनी इसराइल के नहीं, पिछली उम्मतों के नहीं, मिन उम्मती, मेरी उम्मत के होंगे, उम्मत मुहम्मदिया के होंगे, इस उम्मत के होंगे, उम्मत कुरान वो होंगे, कुरान करीम मानने वाली उम्मत, हदीसों को मानने वाली उम्मत। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत यातून यौमल क़ियामा बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़ा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन वो आएंगे, हिसाबो किताब के लिए सबको उठाया जाएगा, कब्रों से सबको निकाला जाएगा, उन्हें भी निकाला जाएगा, अल्लाह के दरबार में हाजिर किए जाएंगे। और नेकियां, अल्लाह के नबी फरमाते हैं नेकियां अंदाजा नहीं लगा सकते। यातून बिहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीज़ा। अल्लाहु अकबर। वो तिहामा की पहाड़ियाँ जो जजीरतुल अरब से यमन तक फैली हुई हैं, वो तिहामा की पहाड़, वो तिहामा के पहाड़। जैसे आज हमारे यहाँ कोई बहुत बुलंदी की मिसाल देनी हो तो हम हिमालय की मिसाल देते हैं, पहाड़ों की मिसाल में हिमालय की मिसाल देते हैं। अरब के लोग ज़माने जाहिलियत से तिहामा पहाड़ों को मिसाल के तौर पर पेश किया करते थे। वो तिहामा जो मुख्तलिफ बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ों पर मुश्तमिल, सऊदी अरब से यमन तक फैले हुए दूर दराज तक लंबे पहाड़ों का सिलसिला। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन आएंगे और मिसाल से उनकी नेकियां समझो, नेकियां जमा करने में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी और कितनी तगो-दो की होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अमसाल जिबाल तिहामत बीज़ा, तिहामा के पहाड़ों की तरह वो नेकियां लेकर आएंगे। और नेकियां पहाड़ की तरह कब बनती हैं? जब उतनी मेहनत की जाती है। आप अंदाज़ा लगाएं कि नेकियां और नेकियों की बात करते हुए पहाड़ की बात हो, एक पहाड़ की बात ना हो, पहाड़ों की बात हो, और आम पहाड़ों की बात ना हो, उन पहाड़ों की बात हो जो पहाड़ ज़रबुल मसल हैं। ज़माने जाहिलियत से लेकर आज तक तिहामा की पहाड़ियों को बुलंदियों में, तिहामा की पहाड़ियों को तिवालत में और तवील सिलसिलों में बतौर मिसाल बयान किया जाता है। वो तिहामा की ज़रबुल मसल पहाड़ियाँ अल्लाह के नबी फरमाते हैं आएंगे हिसाबो किताब के लिए तिहामा के पहाड़ों की तरह दूर दराज तक फैले हुए नेकियों के नेक अमाल का सिलसिला होगा। और आमाल देखने में कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बीज़ा, चमक रहे होंगे, काले काले अमाल नहीं, नेकियां और चमकती हुई नेकियां, दूर से नजर आने वाली नेकियां की नेकियां हैं। ये हज की नेकियां, ये ज़कात की नेकियां, ये सदका की नेकियां, ये तहज्जुद की नेकियां, ये दुआओं की नेकियां, ये तिलावत की नेकियां। सारी जिंदगी नेकियों में अपनी जिंदगी खपाने वाला मोमिन बन के दुनिया से गया होगा, लेकिन हकीकत में मोमिन नहीं रहा होगा। इतनी बड़ी नेकियों का सिलसिला लेके जाएगा, उसके सर पर कोई ताजे वकार नहीं रखा जाएगा, उसके पीठ पर कोई थपथपाई नहीं होगी, उसके लिए कोई कलमे तहसीन नहीं होगा, कोई इज्जत अफजाई नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयजअलु अल्लाहु हबाअम मंसूरा। अल्लाह तमाम तरह की इन लंबी लंबी नेकियों को हवा में उड़ने वाले गुबार की तरफ बना के उड़ा देगा। जिंदगी भर की नेकियां
जहां आदमी अपने अमाल का बदला पाने के लिए जाएगा, अल्लाह बदला नहीं देगा, सवाब नहीं देगा, अजर नहीं देगा, जन्नत नहीं देगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क्या देगा, क्या देगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं फयजअलुहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह तमाम नेकियों को उड़ा देगा और गुबार की तरह धूल कर देगा। सहाबा ने पूछा, हजरत सौबान कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह सिफहुम लना वजल्लहिम लना, या रसूल अल्लाह हमें बताएं तो सही इतनी नेकियां करने वाले कैसे लोग होंगे। या रसूल अल्लाह आपने बताया बहुत सारे लोग ऐसे मेरी उम्मत में होंगे, एक दो नहीं बहुत सारे होंगे। या रसूल अल्लाह आपने अक़वाम कहा, कैसे होंगे वो लोग? सिफहुम लना, उनकी निशानियां बताएं, वजल्लहिम लना, उनके बारे में बताएं, हमारे सामने बात वाज़ेह हो जाए, ताकि ऐसा ना हो हम भी नेकियां करते जाएं, अल्लाह नेकियों को उड़ा दे। अल्लाह के नबी ने बताया कि सुनो अमा इन्नहुम मिन इख्वानिकुम, सुनो वो तुम्हारे भाई होंगे, तुम्हारे अपने में से होंगे। जैसे तुम मुसलमान हो वो भी मुसलमान होंगे, जैसे तुम नेकियां करते हो वो भी नेकियां करेंगे। वयअख़ुज़ून मिनल लैली कमा तअख़ुज़ून, जैसे तुम रात में तहज्जुद पढ़ते हो वो तहज्जुद गुजार होंगे। आम तौर पर आम इंसान तहज्जुद नहीं पढ़ता, जो जरा नेक ज्यादा हो वो तहज्जुद गुजारी का एहतमाम करता है, तहज्जुद पढ़ता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तहज्जुद गुजार होगा, लेकिन वइज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, अल्लाह के नबी ने जुर्म बताया। जुर्म क्या होगा? जुर्म ये होगा कि उनका दिल अच्छा नहीं होगा, उनका दिल अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरने वाला हकीकत में नहीं होगा। क्यों नहीं डरने वाला होगा? इसलिए वइज़ा खलौ, जब वो तन्हाई में होते हैं, जब तन्हाई में रहा करते हैं, जब नजरों से छिप के रहा करते हैं, तो अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया वो सब कर जाते हैं। ये उनका जुर्म है, ये उनका गुनाह है। आप ज़रा बताएं कि ज़िंदगी भर नेकियां करने वाला अगर तन्हाइयों में गुनाह करता है, अगर तन्हाइयों में अल्लाह की हदों को तोड़ता है, अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम करार दिया उन्हें भी करता है, अल्लाह का खौफ सिर्फ सबके सामने, तन्हाई में अल्लाह का कोई खौफ नहीं, तमाम हदें तोड़ते जाना, अगर ये आदत है तो क़यामत के दिन उसकी कोई इज्जत अफजाई नहीं। ये उन लोगों का मामला हो सकता है जिनके दिल में हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ और अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर नहीं है। अगर सच में अल्लाह का डर दिल में होगा, अगर यकीनी तौर पर अल्लाह का डर दिल में होगा, तो आदमी जब तन्हा होगा अल्लाह को याद करेगा, अल्लाह से दुआ करेगा, मुनाजात करेगा, इस्तिग़फ़ार करेगा। वो हदीस मुत्तफ़क़ अलैह आप याद रखें, जिसके बारे में जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साये के सिवा क़यामत के दिन कोई साया नहीं होगा। उस दिन एक आदमी ऐसा भी होगा, बल्कि ऐसे लोग भी होंगे कि जो जब तन्हा रहा करते, जब अकेले रहा करते तो क्या करते? अल्लाह के नबी ने कहा वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़फ़ाज़त ऐना, वो आदमी जो अल्लाह को तन्हाई में याद करे, उसकी आंखें बह पड़े, रो दे, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपने अर्श के साए में रखेगा। तन्हाइयों का सही इस्तेमाल, अल्लाह को याद किया जाए, तिलावत की जाए, नमाजें पढ़ी जाए, कम अज कम जुबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए। अगर ये हो और दिल अल्लाह से डर जाए, जुबान आंसू बहा दे, अल्लाह के अर्श के साए के हकदार बन गए। अगर ऐसा हुआ, तन्हाइयों में ये सोच लिया गया कि अल्लाह की कोई नहीं देख रहा, किसी की नजर नहीं, तो फिर अल्लाह की हदों को तोड़ने की वजह से सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। अब ज़रा इस हदीस पाक को सामने रख के अंदाज़ा लगाएं कि हमें अपने दिल पर काम करने की कितनी ज़रूरत है, हमें अपने दिल की इस्लाह करने की कितनी ज़रूरत है। अगर दिल में वाकई अल्लाह का डर होगा, दिल सबके सामने हो तब भी अल्लाह से डरेगा, दिल जलवत में हो, खलवत में हो, हर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुनाफिकीन का तज़किरा किया, मुनाफिकीन के बारे में अल्लाह के नबी ने बताया मुनाफिकीन कैसे थे। ज़ाहिरी तौर पर एक सच्चे मुसलमान में और एक मुनाफिक में कोई फ़र्क नहीं होता।
ظاہری طور پر جیسے ایک سچا مسلمان ایک پکا مومن ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ایک منافق بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو دل کا فرق ہے، ایک کے دل میں ایمان ہے، ایک کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور دوسرے کے دل میں دکھاوا ہے، دوسرے کے دل میں دنیا طلبی ہے، دوسرے کے دل میں مفاد پرستی ہے، مطلب پرستی ہے۔ اپنے دلوں پر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، اپنے دل کی اصلاح کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمع العارفون باللہ، اللہ کو پہچاننے والے جو دنیا میں لوگ ہیں، اللہ کو جاننے والے جو دنیا میں لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کا، علماء کا، زہاد کا، زاہدوں کا، عابدوں کا، عالموں کا، سب کا اس بات پر اتفاق ہے ان ذنوب الخلوات قد ہی اصل الانتکاسات، کہ یہ جو خلوت کے گناہ ہوتے ہیں، یہ جو تنہائیوں کے گناہ ہوتے ہیں، یہ انسان کی تباہی کی اصل وجہ ہے۔ انسان اپنے ظاہری اعمال کو اچھا بنا کے چلا جائے گا، انسان کا دل اگر متقی نہیں تو انسان کی تباہی قیامت کے دن ہے، اللہ یہ کہ اللہ رب العالمین رحم کر دے۔ امام ابن القیم فرماتے ہیں اجمع العارفون باللہ، اللہ کو پہچاننے والے تمام لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر انسان کو گناہ برباد کریں گے تو تنہائیوں کے گناہ برباد کریں گے، انسان کو خلوت کے گناہ برباد کریں گے، انسان کو اس کے دل کے گناہ برباد کریں گے۔ اور ایک مشہور تابعی حضرت بلال ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ میں نے امام بلال ابن سعد رحمہ اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت بلال ابن سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تکن ولیا للہ فی العلانیہ، حضرت بلال ابن سعد فرماتے ہیں لا تکن ولیا فی العلانیہ وعدوہ فی السریرہ۔ بڑی زبردست بات کہی گئی، ذرا ٹھہر کے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ تم ظاہری طور پر، اوپری طور پر اللہ کے ولی مت بنو۔ ولی بننا ہو، اللہ کا ولی بننا ہو تو اپنے دل سے اللہ کا ولی بنو، تم ظاہری طور پر اللہ کا ولی مت بنو اس طریقے سے کہ تمہارا دل اللہ کا دشمن ہو۔ تم دل کے اعتبار سے اللہ کے دشمن، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے، اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال کرنے والے، اور دکھاوے میں تم نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، زکاتیں دینے والے، خیرات کرنے والے، اوپر کا ظاہری وضاقتہ بھی اچھا اور نیک، اور دل کے اعتبار سے اللہ کے دشمن۔ حضرت بلال ابن سعد کہتے ہیں ایسے مت بنو، ایسے مت بنو۔ اگر بننا ہو تو دل میں بھی دل سے بھی اللہ کے ولی بنو، اور اعمال سے بھی، ظاہری اعمال سے بھی اللہ کے ولی بنو۔ کیوں؟ اللہ کے یہاں صرف ظاہری اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے یہاں انسان کے باطنی اعمال بھی دیکھے جائیں گے۔ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ تَدْعُو إِلَى الْعُصْيَانِ۔ حضرت امام قحطانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ فَوَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الْعِصْيَانِ، کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب تم تنہائی میں رہو اور دل میں وسوسے پیدا ہوں اور دل گناہ پر ابھارے تو گناہ کر دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تنہائیاں ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ فَاسْتَحِي نَظْرَ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا۔ امام قحطانی فرماتے ہیں فَاسْتَحِي مِن نَظْرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي۔ جس نے تاریکیوں کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو پیدا کیا، جس نے تاریکیوں کو پیدا کیا، تاریکیوں سے کہہ دو کہ تاریکیاں پیدا کرنے والا رب، وہ پروردگار، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تاریکیوں کا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی نظر مجھ پر ہے۔ ان الذی خلق الظلام یرانی،
एक मुसलमान की शान यह होनी चाहिए कि मुसलमान अपने दिल में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर रखे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस, आप ज़रा उस हदीस को सुनकर अंदाज़ा लगाएं कि हमारी ज़िंदगी में, हमारी आपकी ज़िंदगी में कि दिल का कितना बड़ा, कितना ऊंचा मकाम है। दिलों की इस्लाह हमारी ज़िंदगी में कितना असर डालती है। अगर दिल पर हमने काम किया, अगर दिल को हमने नेक बनाया, अगर दिल को हमने साले बनाया, अगर परहेजगार बनाया, तो ये हमारे दिल हमें कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो मशहूर रिवायत जो मुत्तफ़क़ अलैह है, जिसे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने, दोनों ने नकल किया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्न फिल जसद मुज़ग़तन, कि सुनो इंसान के जिस्म में एक लोथड़ा है, इज़ा सलहत सलहल जस्द कुल्लहु, अगर वो लोथड़ा नेक हो गया, अगर वो जिस्म का वो लोथड़ा नेक हो गया, इंसान का पूरा बदन नेक हो जाएगा। व इज़ा फसदत फसदल जस्द कुल्लहु, अगर वो गोश्त का छोटा सा लोथड़ा वो अगर फासिद हो गया, गुनहगार हो गया, उसके अंदर अगर गुनाह आ गया, तो इंसान का पूरा बदन गुनाहगार हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अला वहियल क़ल्बु, ऐ लोगो याद रखो जिस लोथड़े की बात हो रही है वो इंसान के सीने में छिपा हुआ दिल है। इस दिले मस्तूर से इंसान सरापा पारसा भी बन जाएगा, इस छिपे हुए दिल से इंसान पूरा गुनहगार भी हो जाएगा। अगर दिल को हमने नेक बनाया, अगर दिल को हमने सालेह बनाया और अगर दिल के अमाल पर हमने तवज्जो दी, तो यकीनी तौर पर हमारे पूरे बदन पर उसके असरात जाहिर होंगे। आप तकरीरें सुन के, नसीहतें सुन के सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को बदलने की कोशिश न करें। ज़ाहिरी तौर पर बदलने के साथ साथ दिल के एतबार से भी अपने अंदर बदलाव लाएं। दिल में क्या है? दिल में कीना होता है। दिल में क्या है? दिल में कुदूरतें हैं। दिल में क्या है? मैलो कुचैल है। दिल में क्या है? नफरतें हैं। दिल में क्या है? हसद है, बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनियां हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे इंसान ज़ाहिरी तौर पर शक्ल में ये शक्लें जैसे एक जैसी नहीं हैं, सबकी शक्लें अलग अलग जुदागाना हैं। जैसे सबके तौर तरीके एक जैसे नहीं होते, सबके तरीके भी अलग, सबके तौर तरीके भी अलग होते हैं, सबके अंदाज भी अलग होते हैं, सबके रहन सहन के अंदाज अलग होते हैं, सबकी शक्लें अलग होती हैं। ऐसे सबका दिल भी याद रखें अलग होता, एक जैसा नहीं होता। किसी का दिल ज्यादा पाक, किसी का दिल कम पाक, किसी का दिल गंदा, किसी का दिल इंतहाई गंदा। ये इंसान ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को बनाओ सिंगार के साथ मुआशरों में घूमने वाला, ये जिंदगी में नजर आने वाला, ये ज़ाहिरी तौर पर बड़ा साफ सुथरा नजर आने वाला, क्या उसकी ज़ाहिरी सफाई इस बात की दलील बन गई कि दिल भी लेकर? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ज़ाहिरी तौर पर इंसान साफ हो तो दिल भी साफ हो, ज़ाहिरी तौर पर साफ नहीं तो दिल साफ नहीं। दिल का मामला अलग है। दिल ज़ाहिरी मामलात से दिल तो बहुत अलग है। और इसी तरीके से दिल ऐसी चीज़ है कि जो जैसा कि मैंने कहा कि जैसे ज़ाहिरी तौर पर लोग अलग अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, रहन सहन अलग है, ऐसे दिल भी एक जैसा नहीं है। दिल भी अलग अलग है, दिल के तौर तरीके भी अलग हैं, दिल के अंदाज भी अलग हैं, सोचने के अंदाज अलग, इबादत के अंदाज अलग, नीयत के अंदाज अलग, मोहब्बत निभाने के अंदाज अलग, रिश्तेदारियां निभाने के अंदाज अलग, ताल्लुकात के लेन देन में खुलूस के अंदाज अलग, सबके अंदाज अलग। दिल को कुदूरतों से, दिल को नफरतों से, दिल को इन तमाम गंदगियों से पाक करें। आज अगर आपने छिपाए रखा, कोई नहीं जानता, आप जानते हैं, आपका रब जानता है, तो याद रखें क़यामत के दिन अला रुऊसिल अशहाद निकाला जाएगा। अल्लाह ने तो फरमाया था वहुस्सिल मा फी सुदूर, दिलों में छिपे राज को अल्लाह खींच के निकाल लेगा। कहाँ छिपाएंगे? अल्लाह ने तो साफ कह दिया
قیامت کے دن نہ طاقت ان کو چھپا پائے گی، نہ مددگار ان کو راز میں رکھ پائے گا، طاقت نہ کام آئے گی، نہ مددگار کام آئے گا۔ قیامت کے دن فضیحت ہوگی، رسوائی ہوگی اور ذلت ہوگی، اور پھر جن لوگوں کے سامنے بڑے اچھے بنے رہا کرتے تھے، بڑے نیک بنے رہا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے سامنے بڑی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ اور میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھوں جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین تمہارے یہ چہروں کو نہیں دیکھتا، تم کس شکل و صورت کے ہو، تمہاری شکل بہت اچھی یا تمہاری شکل اچھی نہیں، اللہ جنت دینے کے لیے، جنت میں ڈالنے کے لیے، اللہ راضی ہونے کے لیے، خوش ہونے کے لیے چہرہ نہیں دیکھتا، کس کا چہرہ اچھا خوش ہو جاؤ، کس کا چہرہ اچھا نہیں اس سے ناخوش رہو، اللہ ایسا نہیں کرتا۔ اللہ خوش ہونے کے لیے، جنت الفردوس دینے کے لیے کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو چیزیں دیکھتا ہے، ایک تو چہرہ نہیں دیکھتا، بدن نہیں دیکھتا، کس کا قد کاٹھی کتنا، کون کتنا موٹا دبلا، کون کتنا بیمار تندرست نہیں دیکھتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ دو چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک چیز دل ہے، انسان کے دل کو اللہ دیکھتا ہے، وہی دل جس میں ہم نے تمام طرح کی گندگیوں کو بھر رکھا، وہی دل جس کی صفائی کے لیے ہمارا کوئی دھیان نہیں جاتا، وہی دل جس میں گندگیاں ڈھوتے ہوئے ہم عبادتیں کرتے جاتے ہیں، وہی دل اللہ دیکھتا ہے۔ جس دل میں گندگی زیادہ، صفائی کم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے سینہ خفا میں چھپے دل کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دو چیزیں قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے زندہ کیا جائے گا، دو چیزیں دیکھی جائیں گی، نامہ اعمال اگر کسی کا دل کے اعتبار سے پاک ہے، صاف ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا وہ بندہ اللہ کے فضل و کرم سے سرخرو ہوگا، اور جس کا دل بھی گندا، اعمال بھی گندے، وہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا حقدار ہوگا۔ اور یہ جو باتیں آپ کے سامنے اس مختصر سے بیان میں رکھی گئیں، ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے، ہمیں اپنے تمام اعمال کا قیامت کے دن حساب و کتاب دینا ہے۔ ہمارے اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک دل کے اعمال اور دوسرے ظاہری طور پر ہونے والے اعمال۔ ہمیں اپنے دل کے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، ہمیں دل کے اعمال کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو نکال کے باہر کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسرے قسم کے اعمال ہیں، ہمارے اعضاء کے اعمال، ہمارے ظاہری اعمال، ان تمام اعمال پر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان دو طریقے کے اعمال کے ساتھ اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن جب حساب و کتاب کے لیے اٹھایا جائے گا تو کیا انسان کو فائدہ دے گا؟ اللہ فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، انسان کا جو مال تھا، جو انسان کے پاس دولت تھی، یہ دولت انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ ولا بنون، اولاد قیامت کے دن انسان کے کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہ نے فرمایا کہ جو قلب سلیم لے کر کے اللہ کے پاس جائے گا وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا، اور انسان کا قلب سلیم سیدھا، سچا، صاف اور خالص دل انسان کے کام آئے گا۔ اور میں یاد دہانی کے طور پر اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ سید الطاہرین تھے، تمام طاہروں میں سید الصالحین تھے، تمام صالحین میں سب سے بہتر
तमाम ताहिरों में सबसे बढ़तर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दिल धुला गया था जमजम के पानी से। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी जमजम से धुले दिल के लिए अल्लाह से दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को उलट पलट करने वाले, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के मालिक, मेरे दिल को अपनी इताअत पर फेर दे, मेरे दिल को अपनी इताअत पर जमा दे। ये जमजम से धुले दिल की दुआ है। हमारे दिलों का आलम क्या है? हमारे दिलों में मेलो कुचैल इंतहाई दर्जे का है। हमें किस हद तक दुआएं करनी चाहिए? और वो नबी मोहतरम, वो नबी सादिक व मसदूक जो दुआएं किया करते थे, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, ऐ अल्लाह, ऐ दिलों के मालिक, ऐ अल्लाह, तू मेरे दिल में नूर भर दे। वो सरापा मुनव्वर और रोशन दिल रखने वाले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दिल भी रोशन, जिनके अमाल भी रोशन, नबी कायनात, नबी सादिक व मसदूक, नबी सादिकीन, नबी कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साफ सुथरे दिल के नूर के लिए कि अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा कर दे, अल्लाह मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, मेरे दिल में इस्तिकामत अता फरमा दे। वो नबी जब दुआ किया करते थे, जब कुरान करीम में भी ऐसी दुआएं बताई गई, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब, जब ये दुआएं दिलों के ताल्लुक से खुसूसियत के साथ सिखाई गई तो ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि हम कितनी बड़ी चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कितनी अहम चीज़ को हम किनारे रखे हुए हैं। ज़रूरत इस बात की है हम अपने ज़ाहिर को भी अच्छा बनाएं, हम अपने बातिन को भी अच्छा बनाएं, हम हर तरीके से अपने आप को ऐसा बनाएं क़यामत के दिन जब उठाए जाएं जैसे दुनिया में अच्छे हैं आखिरत में अच्छे रहें। ऐसा ना हो यहाँ अच्छे वहाँ पर बुरे निकल जाएं अपने दिलों की वजह से, और पोशीदा और खलवत के और दिल के अमाल की वजह से। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हमें हर तरीके से सालेह और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों की इस्लाह फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से गंदगियों को, कुदूरतों को, मैलो कुचैल को निकाल के सफाई, खुलूस, मोहब्बत और वफा डाल दे। रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को पाक और साफ कर दे। ऐ अल्लाह हमारे दिलों में नूर पैदा फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को अपने दीन पर, इताअत के कामों पर जमा दे, साबित कदम रख। रब्बुल आलमीन हम क़ल्ब सलीम के साथ हम तुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, और रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी रुसवाइयों से, ज़िल्लतों से महफूज फरमा। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।